welcome you all in this video lecture. Today's topic is particle in a three-dimensional potential box. So first we will solve the Schrodinger wave equation for a particle that is trapped inside a rectangular potential box, and in the last we will determine the degeneration of the energy levels. So let us consider the motion of a free particle in a three-dimensional potential box of length A, breadth B and height C. And the potential inside the box is 0 and outside it is infinite. So let us, this box is there and the potential inside this box is V equals to 0 and outside the box it is infinite. So we will have the boundary condition in this case x equals to 0 and x equals to a, the wave function will be 0, as well as when the y equals to 0 and y equals to b, again you have the boundary condition and wave function will be 0. Similarly, for the z axis we have the boundary condition z equals to 0 and z equals to c. Now the time independent Schrodinger equation for the motion of a particle inside such a box will be, so we are using here three-dimensional time independent wave equation, that is d by square psi upon d by x square plus d by square psi upon d by y square plus d by square psi upon d by z square plus 8 pi square me by h square psi equals to 0. So here wave function psi is basically the function of independent variables x, y and z. So now we will solve this equation by using the method of variable separation. So we have Schrodinger time independent wave equation in three dimensions. So first we will assume k square equals to 8 pi square me by h square. तो अगर आपने k स्क्वायर की वैल्यू को ये एज्यूम कर लिया है तो आपकी इक्वेशन जो है वो अब क्या बन जाएगी, डेल स्क्वायर साई आर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई आर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई आर बाय डेल जेड स्क्वायर देन प्लस k स्क्वायर साई आर इक्वल्स टू 0. Let this is your equation number 1. Now the wave function psi is depending on the variable x, y, z, and these variables are independent to each other. So we can employ the method of variable separation for solving this second order differential equation. So for that, let us assume the wave function, that is the psi r, or you can write psi x, y, z इक्वल्स टू, अब इस वेव फंक्शन को हम थ्री इंडिपेंडेंट पार्ट में सेपरेट कर लेते हैं. सो द फर्स्ट पार्ट इज डिपेंडिंग ओनली ऑन द x, सेकेंड पार्ट इज डिपेंडिंग ओनली ऑन द वेरिएबल y and third part is depending only on the z. Let this is your equation number 2. Now we will differentiate this equation partially with x, y and z. So if you differentiate this equation with respect to x, then you will get del square psi r by del x square. तो x के रिस्पेक्ट में अगर हम दो बार डिफरेंशिएशन यहाँ पे करते हैं तो y और z आपके कांस्टेंट रह जाएंगे और यू विल गेट डेल स्क्वायर x ऑफ x अपॉन डेल x स्क्वायर. तो आपने वेव फंक्शन psi का डिफरेंशिएशन जो है पहले x के रिस्पेक्ट में किया है
इसी तरह हम इसका डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कर लेंगे. सो यू कैन राइट सिमिलरली, वी कैन राइट del square psi r upon del y square equals to x of x z of z, then del square y of y upon del y square. और इसी तरह से आप टर्म लिख लेंगे del square psi r upon del z square equals to x of x y of y then del square z of z by del z square. ये जो तीन इक्वेशंस आप निकाली है यहाँ पर, इन तीनों इक्वेशंस को हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो इन तीनों की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 में लगा देता हूं तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी. तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू लगाता हूं. सो y ऑफ y z ऑफ z del square x of x by del x square, then plus x of x z of z del square y of y upon del y square, and the third term will be x of x then y of y del square z of z by del z square. और लास्ट टर्म जो थी हमारी वो क्या थी, k स्क्वायर साई r. तो साई r या साई x y z की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हमारा फंक्शन की वैल्यू x of x y of y एंड z of z इक्वल्स टू 0. जब आपने x, y और z के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव निकाला है 2 टाइम्स और अगर वैल्यू आपने इक्वेशन में रखा है तो आपके सामने ये इक्वेशन आ गई. नाउ वी विल डिवाइड above equation by x of x, y of y और z of z. अगर आप पूरी इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास इक्वेशन जो है वो बन जाएगी 1 अपॉन x of x del square x of x by del x square plus 1 of y of y del square y of y by del y square plus 1 upon z of z del square z of z by del z square, and the last term will be the k square equals to 0. अगर इस इक्वेशन को देखें तो लास्ट टर्म जो आपकी इसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं आ रहा है तो एक कांस्टेंट टर्म है. फर्स्ट जो टर्म आपकी केवल x पे डिपेंड कर रही है, सेकेंड टर्म केवल y पे डिपेंड कर रही है और थर्ड टर्म केवल z पे डिपेंड कर रही है. ऐसा डायमेंशन अगर इक्वेशन ये करेक्ट है तो ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये जो टर्म्स है वो किसी न किसी कांस्टेंट के इक्वल हो, क्योंकि लास्ट टर्म क्या है आपकी कांस्टेंट है तो बाकी 3 टर्म्स भी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट के इक्वल होनी चाहिए. तो हम क्या करते हैं, इन्हीं टर्म्स को कांस्टेंट मान लेते हैं. तो फर्स्ट टर्म को मान लेते हैं माइनस के एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म को मान लेते हैं माइनस के वाई स्क्वायर और थर्ड टर्म को मान लेते हैं माइनस का के जेड स्क्वायर और लास्ट टर्म आपकी कितनी है, के स्क्वायर इक्वल्स टू 0. तो यहां से आपके पास में एक इक्वेशन बन जाती है के स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर. ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया है और आपने जो कोफिशिएंट्स एज्यूम किए हैं तो फर्स्ट टर्म को आपने क्या एज्यूम किया है, यहाँ पर माइनस का के एक्स स्क्वायर. तो अगर आप फर्स्ट टर्म को माइनस के एक्स स्क्वायर रखते हैं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, 1 अपॉन एक्स ऑफ एक्स डेल स्क्वायर एक्स ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के एक्स स्क्वायर. अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे
तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी डेल स्क्वायर एक्स ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर एक्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो ये इक्वेशन केवल सेम टू सेम वही इक्वेशन आ चुकी है जो कि आपने पार्टिकल इन 1D बॉक्स में किया था। तो अगर आप बाकी 3 इक्वेशन भी इसी पैटर्न पे लिखें तो यू कैन राइट हियर डेल स्क्वायर y ऑफ y अपॉन डेल y स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर y of y equals to 0, and the third equation will be del square z of z by del z square plus kz square z of z equals to 0। अब आपके पास ये 3 इक्वेशन आ चुकी है जो सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशंस है और इन इक्वेशंस का हमें सॉल्यूशन निकालना है बाय यूजिंग द बाउंड्री कंडीशंस। तो सबसे पहले हम x की इक्वेशन को सोल्व करते हैं, देन वी विल फाइंड द सॉल्यूशन फॉर द y एंड z। तो अगर आपकी फर्स्ट इक्वेशन जो है अगर x में है तो इसका एक जनरल सॉल्यूशन आप ले सकते हैं x ऑफ x इक्वल्स टू a साइन kx इंटू x प्लस b cos kx इंटू x। ये इस इक्वेशन का एक जनरल सॉल्यूशन हो सकता है जहां पर a और b दो हमारे क्या है कांस्टेंट्स है। तो अब हमें इन दो कांस्टेंट्स की वैल्यू बाउंड्री कंडीशंस को यूज करके निकालनी होगी। तो बाउंड्री कंडीशन जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वो क्या रहेगी कि जब फंक्शन की वैल्यू x इक्वल्स टू 0 या x इक्वल्स टू a होता है तो आपका वेव फंक्शन वहां पे 0 हो जाना चाहिए। सो आप यहां पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू बाउंड्री कंडीशंस वी हैव, क्या है हमारी बाउंड्री कंडीशन कि व्हेन x इक्वल्स टू 0 x ऑफ x शुड बी 0 एंड व्हेन x इक्वल्स टू a x ऑफ a अगेन शुड बी 0। तो अगर हम फर्स्ट वाली कंडीशन आप इस इक्वेशन के अंदर लगाते हैं तो आपकी इक्वेशन कैसे बन जाती है देखिए। सो x ऑफ x इक्वल्स टू आप रख रहे हैं यहां पे a साइन kx 0 प्लस b cos kx 0। अब साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और x ऑफ x आपने क्या कहा है कि x इक्वल्स टू 0 पे क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। सो 0 प्लस cos की वैल्यू 1 हो गई तो यहां से आपको कांस्टेंट b की वैल्यू कितनी मिल गई 0 मिल गया। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट b इक्वल्स टू 0। तो ये हमने अभी एक कंडीशन यूज किया है। अब हम दूसरी कंडीशन यहाँ पे और यूज करेंगे और वो कौन सी है x इक्वल्स टू a के ऊपर x ऑफ a शुड बी 0। तो सबसे पहले हम वेव फंक्शन को एक बार लिख लेते हैं वापस से। तो हमारा वेव फंक्शन कितना हो गया x ऑफ x इक्वल्स टू a साइन kx इंटू x। अब b तो 0 हो गया तो केवल हमारा वेव फंक्शन इतना ही बचा। अब हम फिर से इसमें अगर बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं तो बाउंड्री कंडीशन क्या थी आपकी व्हेन x इक्वल्स टू a देन x ऑफ a इक्वल्स टू 0। तो अगर ये वैल्यू मैं यहां लगाता हूं तो बन जाएगा 0 a साइन kx इंटू a। अब कोएफिशिएंट a की वैल्यू को हम 0 करेंगे नहीं तो हम किसको 0 करेंगे यहां से वी विल इक्वेट साइन kx a इक्वल्स टू 0 और साइन में 0 वैल्यूज कब कब हो सकती है साइन n पाई के लिए। सो वी विल राइट साइन nx पाई। अगर दोनों साइड आप इसको कंपेयर करते हैं सो यू विल गेट kx a इक्वल्स टू nx पाई। तो यहां से आपके पास kx की वैल्यू कितनी आ गई nx पाई बाई a। ये आपने फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व किया तब आया। इसी तरह अगर आपकी जो सेकंड इक्वेशन जो बन रही है यहाँ पे एंड सेकंड इक्वेशन इज डेल स्क्वायर y ऑफ y डेल y स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर
y ऑफ y इक्वल्स टू 0। अगर आप सिमिलर सॉल्यूशन निकालें तो आप इसका सॉल्यूशन भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो अगर ये वैल्यू आप इसके अंदर के वाई के लिए निकालना चाहेंगे तो वैल्यू आ जाएगी के वाई इक्वल्स टू एन ऑफ एन वाई पाई बाई बी, और सिमिलरली के जेड इक्वल्स टू एन जेड पाई बाई सी। तो ये तीन वैल्यूज आपकी बाउंड्री कंडीशन निकालने के बाद आपको मिल जाएगी। अभी हमें कांस्टेंट ए की वैल्यू को डिटरमाइन करना बाकी है। तो अगर हम ये वैल्यू हमारे फंक्शन में रख देते हैं तो आवर फंक्शन विल बी x ऑफ x इक्वल्स टू a साइन, अब kx की वैल्यू हम कितनी रखनी है यहाँ पे, nx पाई बाई a डॉट x। ये हमारा फंक्शन हो गया। नाउ वी विल यूज द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हियर। और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या कहती है कि अगर आपका फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है तो किसी वॉल्यूम के लिए उसकी इंटीग्रेशन जो उसके स्क्वायर है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो अगर हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यूज कर लेते हैं यहाँ पे, सो बाय यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या बन जाएगी यहाँ पे, x ऑफ x का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, वेव फंक्शन का स्क्वायर, और ये x के रिस्पेक्ट में इसलिए dx, और हमारी लिमिट्स कहां से कहां तक हो जाएगी, 0 टू a। तो ये x ऑफ x का होल स्क्वायर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द प्रोबेबिलिटी, और आप 0 टू a में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए आपके पास, 1। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन के अंदर वेव फंक्शन की वैल्यू को रख देते हैं देन यू विल गेट 0 टू a देन a स्क्वायर साइन स्क्वायर और साइन nx पाई बाई a x dx इक्वल्स टू 1। अब ये जो इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू हमने 1D बॉक्स के अंदर निकाली थी। तो आप अगर साइन स्क्वायर को फॉर्मूला में चेंज कर सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा के फॉर्मूले से, और अगर आप इसकी वैल्यू निकालते हैं पूरी इंटीग्रेशन की तो कोसाइन पार्ट की वैल्यू 0 हो जाती है और केवल x पार्ट इसके अंदर बचता है। तो आप इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर और लिमिट आ जाएगी आपकी x 0 टू a इक्वल्स टू 1। आप इसको सोल्व करके देखेंगे इंटीग्रेशन को, यही आने वाला है। सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू अंडर रूट, सॉरी यहाँ पे एक 2 और आएगा साथ में जब आप इसको चेंज करेंगे, तो a स्क्वायर बाई 2। सो यू विल गेट द वैल्यू 2 अपॉन a। तो जिस तरह से आपने a की वैल्यू अंडर रूट 2 बाई a निकाला है तो हमारा जो वेव फंक्शन है वो कितना बन जाएगा, अगर हम वेव फंक्शन की वैल्यू को लिखे तो x ऑफ x इक्वल्स टू अंडर रूट 2 बाई a देन साइन nx पाई बाई a x। ये हमारा फर्स्ट वेव फंक्शन आ गया है। और अगर इसी सिमेट्री को देखते हुए हम बाकी फंक्शन को लिखना चाहें तो इजीली लिख सकते हैं। यू कैन राइट y ऑफ y इक्वल्स टू अंडर रूट 2 अपॉन b देन साइन ny पाई बाई b डॉट y। और इसी तरह अगर आप z के लिए लिखते हैं तो z ऑफ z इक्वल्स टू अंडर रूट 2 बाई c देन साइन nz पाई बाई c डॉट z। तो ये तीनों जो आपने फंक्शन माने थे x ऑफ x, y ऑफ y और z ऑफ z, तीनों की वैल्यू आपने यहाँ पे डिटरमाइन कर ली है। अगर ये वैल्यूज हम हमारे वेव फंक्शन में रख दें तो हमारा वेव फंक्शन बेसिकली क्या था, साई x कोमा y कोमा z इक्वल्स टू x ऑफ x, y ऑफ y देन z ऑफ z। अब यहाँ पे तीनों वैल्यूज अगर हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और सबस्क्रिप्ट इसके साथ में अगर हम लगा दें तो बन जाएगा ये साई nx ny nz x कोमा y कोमा z। अब अगर तीनों को एक साथ वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो बाहर तो फैक्टर आ जाएगा अंडर रूट 8 अपॉन ABC, और फर्स्ट टर्म आ जाएगी साइन nx
pi by a dot x, then sin ny pi by b dot y, sin nz pi by c dot z. So this will be the wave function for a particle trapped inside a rectangular potential box. तो ये तो हमने निकाल लिया है उसका वेव फंक्शन. अब हम निकालने वाले हैं एनर्जी की वैल्यू. तो एनर्जी की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला हमने लास्ट में माना था वो क्या था, के स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर. आप नीचे देख सकते हैं एक बार के लिए. ये देखिए हमने यहाँ पे अज्यूम किया था ये वाला फॉर्मूला, के स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर. अब जो वैल्यूज हमने यहाँ पे अज्यूम करी है के स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, उन वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो देखिए आपने के एक्स के वाई के जेड की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी डिटरमाइन कर चुके हैं. ये वैल्यू हम इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो अगर ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं मैं, तो के स्क्वायर की वैल्यू सबसे पहले लिखूंगा. तो वो थी 8 पाई स्क्वायर एम ई बाई एच स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स जो था मेरा वो कितना आया था, एन एक्स पाई बाई ए का होल स्क्वायर प्लस एन वाई पाई बाई बी का होल स्क्वायर प्लस एन जेड पाई बाई सी का होल स्क्वायर. अब इसमें जो टर्म कॉमन आ सकती है उस टर्म को हम कॉमन निकाल के कैंसिल आउट करते हैं. तो देखिए यहाँ से पाई स्क्वायर आ रहा है और ये पाई तीनों में आ रहा है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे और यहाँ से हम एनर्जी की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं. तो एनर्जी की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे तो हम इस एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से ई एन एक्स एन वाई एन जेड इक्वल्स टू. अब यहाँ पे देखिए एच स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ए टाइम नीचे आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं एच स्क्वायर बाई ए टाइम और ब्रैकेट में रह जाएगा हमारे पास एन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. सो दिस इज द एनर्जी आइगन वैल्यू फॉर ए पार्टिकल इन द 3-dimensional बॉक्स. अगर हम कहते हैं कि इफ ए बॉक्स इज क्यूबिकल, अगर हमारा बॉक्स कैसा हो जाए, क्यूबिकल हो जाए, तो क्यूबिकल होने का मतलब क्या हो गया, a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी. अगर तीनों वैल्यू इक्वल हो जाए, आपका बॉक्स रेक्टेंगुलर की जगह क्यूबिकल हो गया है, देन एनर्जी वैल्यू क्या हो जाएंगी. सो E एन एक्स एन वाई एन जेड इक्वल्स टू एच स्क्वायर बाई 8ma स्क्वायर और ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास एन एक्स स्क्वायर एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर. इसी तरह अगर आपका वेव फंक्शन लिखना चाहे तो वेव फंक्शन आपका बन जाएगा साई एन एक्स एन वाई एन जेड एक्स कोमा वाई कोमा जेड इक्वल्स टू √8 बाय ए क्यूब, क्योंकि a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी है. देन साइन एन एक्स पाई बाई ए एक्स, देन साइन एन वाई पाई बाई ए वाई, देन साइन एन जेड पाई बाई ए. तो ये हमारे एक तो आ गया एनर्जी वैल्यू और एक आ गया आपका वेव फंक्शन. तो दोनों चीजें अपनी यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए. अब अगर आप इन एनर्जी वैल्यूज की लेवल्स के अंदर हम इसकी निकालें वैल्यूज, तो ये देखिए वैल्यूज किस तरह से आ जाएगी आपके पास. तो सबसे पहले एक बार मैं फॉर्मूला वापस लिख लेता हूँ. फॉर्मूला था मेरा ई एन एक्स एन वाई एन जेड इक्वल्स टू एच स्क्वायर बाई 8ma स्क्वायर एन एक्स स्क्वायर
ny स्क्वायर nz स्क्वायर। अब यहाँ पर nx, ny, nz तीनों ही क्या है, इंटीजर्स है, जिनकी मिनिमम जो वैल्यू है वो बेसिकली यहाँ पर कितनी है, 1। तो अगर हम तीनों की वैल्यू को 1 रख दें यहाँ पे, तो एनर्जी की जो फर्स्ट वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, E1,1,1 इक्वल्स टू h स्क्वायर बाई 8ma स्क्वायर देन 1 + 1 + 1। दैट मीन्स टोटल वैल्यू आ गई आपके पास 3h स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर। तो ये फर्स्ट वैल्यू हो गई। तो अगर आप इसको ग्राफ में लेवल्स के फॉर्म में चेक करना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि आपके जो एनर्जी लेवल्स हैं उनकी वैल्यूज किस टाइप से होंगी। तो पहला जो आपका ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी, तो ग्राउंड स्टेट जो एनर्जी होगी हमारी वो कितनी आएगी, यहाँ से आ जाएगी E1,1,1। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या हो गया, nx, ny, nz की वैल्यू 1, 1, 1। अब अगर आपको नेक्स्ट वैल्यू रखना हो यहाँ पे, तो नेक्स्ट वैल्यू का कॉम्बिनेशन आपके पास तीन तरह से हो सकते हैं। देखिए, एक आप वैल्यू ले सकते हैं 2,1,1, दैट मीन्स nx की वैल्यू 2, ny की वैल्यू 1 और nz की वैल्यू 1। तो अगर आप ये लेते हैं तो आपके पास एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,1,1 इक्वल्स टू h स्क्वायर बाय 8ma स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 + 1 + 1। तो टोटल एनर्जी जो हमारी आ गई 4 + 2 6, दैट इज द 6h स्क्वायर बाय 8ma स्क्वायर। तो आपका जो नेक्स्ट एनर्जी लेवल है उसके अंदर आपके पास एनर्जी की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है, E2,1,1। यहां पर आप देखिए पहला कॉम्बिनेशन आपने लिया 2,1,1। अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग है कि अगर आप यहाँ पर वैल्यू लेते हैं 1,2,1 या आप वैल्यू ले 1,1,2, तीनों ही केसेस के अंदर एनर्जी की वैल्यू सेम आने वाली है। अगर आप यहाँ पर 2,1,1 लेते हैं या 1,2,1 लेते हैं या 1,1,2 लेते हैं, तीनों ही केसेस के अंदर एनर्जी की वैल्यू सेम आएगी। लेकिन जैसा कि लास्ट में आपने वेव फंक्शन लिखा था, अब यहाँ पर आप वेव फंक्शन जब लिखेंगे तो आपको वेव फंक्शन मिलेगा psi 2,1,1 दैट इज नॉट इक्वल टू psi 1,2,1 एंड दैट इज नॉट इक्वल टू psi 1,1,2। सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि देर आर 3 वेव फंक्शंस, psi 2,1,1, psi 1,2,1 and psi 1,1,2 are associated with a single energy level that is E2,1,1। तो एक बार मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने ये कि देर आर 3 वेव फंक्शंस 1, 2 and 3। These 3 wave functions correspond to the same energy level, having the same energy. So this particular energy level is known as degenerate energy level। लेकिन जो फर्स्ट वाला जो आपका लेवल है, इसकी जो एनर्जी है इसके लिए केवल एक ही वेव फंक्शन पॉसिबल है 1, 1, 1। तो यहाँ पर एक एनर्जी लेवल, एक ही वेव फंक्शन है, देन दिस एनर्जी लेवल इज नोन एज नॉन डिजेनरेट एनर्जी लेवल। सो if there are more than one wave function associated with the same energy level, then such energy level is known as degenerate and such a phenomena is known as degeneration। So अगर हम यहाँ इस लेवल की बात करें, so the order of the degeneracy, अब order of degeneracy का क्या हो जाएगा, so order of degeneracy for this particular level will be 3। तो आप ये कह सकते हैं अगर किसी एनर्जी लेवल के लिए n नंबर ऑफ वेव फंक्शन एसोसिएटेड है, देन दैट पर्टिकुलर एनर्जी लेवल इज n फोल्ड डीजेनरेट। अगर हम एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पे, सपोज हमारे पास nx की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, ny की वैल्यू सपोज 2 ले लेते हैं, nz की वैल्यू 3 ले लेते हैं। तो इसके लिए आपके पास कई सारे कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। जैसे आपका पहला कॉम्बिनेशन हो जाएगा 1, 2, 3, तो दूसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है आपका 1, 3,2। देन इसी तरह से आप इसके कॉम्बिनेशन से अगर चेंज करते रहे तो ये हो सकता है 1,3, देन हो सकता है 2, 3,1, इसी तरह आपका हो सकता है 3,
1, 2, then 3, 2, 1. So there are total 6 wave functions are possible for this energy state. That means that energy state is 6-fold degenerate. So I think you got the idea of the degeneracy, and we have derived the formula for the energy and wave function. Thank you for watching this video.